बाबा कॉलेज के प्रिंसीपल डॉक्टर प्रदीप भंडारी जी का स्वागत करते हैं तो उन्होंने अग्रे करते हैं कि काइंडली वो साडे कोल एक टोकन ऑफ रिस्पैक्ट लैन साडी टीम वालों सिविल डिफेंस की है ਉਹਦੀ ਬਣਤਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਐਨਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਰੋਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਫਸਟ ਏਡ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ CPR FPAO ਤੇ ਵੇਰੀਅਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੈਸਕਿਊ ਮੈਥਡਸ ਫਲੱਡ ਰੈਸਕਿਊ ਟੈਕਨੀਕਸ ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਿਨੀਮਮ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਰਸਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕੰਬਲ ਆ ਇੱਕ ਚਾਰਪਾਈ ਹੈ ਚਾਰਪਾਈ ਸਮਝੋ ਚਾਰਪਾਈ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਕੈਜੁਅਲਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਈਟ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੈਡਰ ਆ ਲੈਡਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਲੈਡਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੈਜੁਅਲਟੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਨੀਚੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਟੇਬਲ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਫਸਟ ਏਡ ਪੋਸਟ ਹੈ ਹੈਲਪ ਹੋਗੀ ਨਾ ਉਹਦੀ तो एक की है कि मेडिकल केयर है पब्लिक वर्क रिपेयर्स ये तो क्या समझते हैं आपका पब्लिक वो लिखा है ना पब्लिक वर्क्स रिपेयर ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਟੇजेस ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਫੇਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਟ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਐਕਟ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਵਧੀਆ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸ ਫੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਿਕਵਰ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਟੇਟ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡੁੱਬੇ ਥੋੜਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਸਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹੀ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪੈਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੇਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਰਿਕਵਰੀ ਫੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਫੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਡਿੱਗਣੇ ਕੰਧਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲੀ ਬ੍ਰਿਕ ਦੀ ਕੰਧ ਬਣਾ ਦਈਏ ਉਹਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਰਿਸਰਚ ਹੋਈ ਫਿਰ ਸਟੀਲ ਦੀ ਰੋਡ ਸਰੀਏ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਸੀਮੈਂਟ ਬਣਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਰੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਏ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਲਰ ਤੇ ਬੀਮ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕੰਕਰੀਟ 1% ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰ ਚਲਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਇਹੀ ਮੋਟਿਵ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਰ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਫਾਇਰ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰ ਯੂਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਾਇਰ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮੁੰਡਾ ਸਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਰ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰ ਆ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਢਲੀ ਫਾਇਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ जैसे 2.5 किलो का हाथ है 9 किलो का सिलेंडर से सारी आग हो जाती है इतना कुछ नहीं होता सो गल उत्थे आ गई ना कॉमन सेंस ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ अपनी जान को पहला बचाना ये प्रोग्राम हो रहा है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये प्रोग्राम हो रहा है इसमें आपने अभी जो बताया जगमिंदर जी ने फील किया होगा और मैंने भी ये फील किया क्योंकि हम जब पढ़ते थे तब ऐसे प्रोग्राम कॉलेजेस में नहीं होते थे लेकिन अगर आप इनमें से छोटी चीज़ों को सीख लें तो मुझे लगता है कि आप एक बेटर ह्यूमन बीइंग बन सकते हैं वो सबसे बड़ा मोटो होता है ह्यूमन लाइफ का कि आप एक बेटर ह्यूमन बीइंग बन सकें क्योंकि हम सब कुछ बन रहे हैं हम डॉक्टर्स बन रहे हैं इंजीनियर बन रहे हैं टीचर्स बन रहे हैं आर्किटेक्ट बन रहे हैं पुलिसमैन बन रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों में अच्छे इंसान कहाँ हो रहे हैं गुम हो रहे हैं कि नहीं yes, तो इन 7 दिनों में आपने जो टेक्निक सीखनी है उन छोटी टेक्निक को सीख के बेटर ह्यूमन बीइंग वो होता है जो अपने आसपास वालों की हेल्प करता है
जो सिर्फ सेल्फ फोकस नहीं होता, वो सोसाइटी फोकस्ड होता है। लेकिन कई बार आपने फील किया होगा कि आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन आप अपने आप को उतना कैपेबल फील नहीं करते हैं, उन टेक्नोलॉजी से लेस फील नहीं करते हैं कि मैं करूं क्या। फॉर एग्जांपल सारे मुझे पता जितने बच्चे होंगे, आपने कहीं ना कहीं रोड एक्सीडेंट देखा होगा, लेकिन आपको पता ही नहीं कि अब मैं करूं क्या। आप करना चाह रहे हैं लेकिन पता नहीं है करना क्या। सिमिलरली फ्लड्स आए, हमारे पास सोशल मीडिया में इतने सारे मैसेजेस आ रहे थे, आप सारे कुछ ना कुछ करना चाहते थे लेकिन पता नहीं है करें क्या। कुछ 4 लोग अगर काम शुरू भी करते हैं तो हमें उसके लिए कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है कि मैं कहां से शुरू करूं। तो उन सारी चीजों को हैंडल करने के लिए जब वो फर्स्ट एड दे दोगे या नेचुरल कैलामिटी में किसी की हेल्प कर दोगे या पुलिस की किसी लॉ एंड ऑर्डर में आप हेल्प कर दोगे, तो आपको अंदर से इतनी तसल्ली मिलेगी, वो किसी के पास बैठने से नहीं मिल सकती, क्योंकि अंदर से हम लोग बहुत अच्छे हैं, भगवान ने हमें ऐसा बनाया हुआ है। तो जैसे ही आप किसी की हेल्प करते हो, आपके अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस आता है कि आप और बहुत कुछ करने के लिए अपने आप को करता रहूंगा। क्योंकि मेरा भी इंटरेस्ट बन गया है पिछले 5-7 मिनट में, जब मैंने इनकी जगमिंदर जी की बात सुनी है तो उसमें इंटरेस्ट बना। मिलता रहूंगा आपसे। तो मैं आशा करता हूं कि इन 7 दिनों में जो हमारे जगमिंदर सिंह जी हैं कंपनी कमांडर, नवदीप सिंह जी हैं कंपनी कमांडर, ये आपको बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। बाहर से भी रिसोर्स पर्सन आने वाले हैं। हमारे साथ चीफ वार्डन मिस्टर PS नोटी जी हैं, अच्छा अभी बाहर गए हैं, अभी जो आए थे यहाँ पे वो हमारे कॉलेज के स्टूडेंट भी हैं, उनका भी मैं इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ। मिस्टर MS मन्ना जी हैं, डिविजनल वार्डन हैं। गगनदीप सिंह सब इंस्पेक्टर हैं यहाँ पे बैठे, और RS भट्टी सेक्टर वार्डन जो पीछे बैठे हैं। आप सभी का दोआबा कॉलेज में आने के लिए स्वागत है। और कॉलेज की तरफ से इस नोबल कॉज के लिए, बहुत ही नोबल कॉज के लिए, क्योंकि क्लासेस से असली पढ़ाई में कई बार फील करता हूँ कि जब वॉलंटियर होके आप कुछ करते हो, असली पढ़ाई तभी शुरू होती है। जब आपको खींच के क्लासेस में लाया जाता है, जब आपको किसी डर से लाया जाता है कि नहीं आपके लेक्चर शॉर्ट हो जाएंगे, आपके टेस्ट में नंबर कम हो जाएंगे, वो लर्निंग कहीं ना कहीं कम रह जाती है। लेकिन ये जो बच्चे हैं जो वॉलंटियर होके आए हैं, इसलिए स्वयं सेवक जो खुद वॉलंटियर होके किसी अच्छी काम के लिए जब आप आगे बढ़ते हैं, तो वो लर्निंग आपको एक ऐसा अच्छा इंसान बनने में हेल्प करती है। और जो ये लर्निंग होगी ये पूरी लाइफ आपके साथ चलनी है। तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई आप सभी को। और साथ ही साथ मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत सारी बेटियां हैं। तो कई बार क्या होता है, लड़कियों को हम वीक समझते हैं, है ना, कि कहीं ऐसा हो तो बेटी को घर वाले पहले पीछे करते हैं, बेटा तू तो पीछे हो जा, और लड़का बेचारा डर भी रहा हो लेकिन फिर भी उसको आगे जाना पड़ता है। तो यहाँ पे मुझे बड़ी खुशी हुई कि अराउंड 50% से भी ज़्यादा बेटियां और मैडम्स बैठे हैं यहाँ पे। तो आपका यहाँ होना, और मुझे लगता है हमारे कॉलेज के लिए भी बड़ी अच्छी बात है। बीइंग ए कोएड कॉलेज, आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे ज़्यादा बॉयज़ होंगे, पर गर्ल्स एंड बॉयज़ का इक्वल नंबर देख के मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो इन दिनों में, अगले जो 7 दिनों में, जब आप सिविल डिफेंस के लिए बहुत सारी चीज़ें सीखोगे, एक्चुअली आप जैसे यूथ की इंडिया को ज़रूरत है। इंडिया में हर तरह के प्रोफेशंस की भरमार है। अब इंडिया को ज़रूरत है ऐसे लोगों की जो अंदर से, कोर से अच्छे हों। वो आप देख लो, हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको क्या दिख रही है जो रोज डेली आप फेस कर रहे हो? कौन सी प्रॉब्लम? कचरे की प्रॉब्लम है। तो क्या कचरा जो हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स है वो नहीं फैला रहे हैं? वो ज्यादा फैला रहे हैं। इनफैक्ट वो ज्यादा फैला रहे हैं। तो कचरे की प्रॉब्लम जो है, वेस्ट मैनेजमेंट में हमारा कॉलेज भी इसके लिए बहुत काम कर रहे हैं। हम हमारा कॉलेज तो क्योंकि देवीतला मंदिर के बिल्कुल सामने है, तो इसके सामने हमारी वॉल के पास इतना डंप बन गया था। कॉलेज की बैक साइड पे कमल हॉस्पिटल के सामने डंप बन गया था। तो आज हमारे पास हमारे NSS के कोऑर्डिनेटर बैठे हैं, डॉक्टर अर्शदीप। इन्होंने, और साथ में हमारा जो इको क्लब है कॉलेज का, तो जो बाकी बच्चे हैं, जस्ट आपको ये नहीं कि दोआबा कॉलेज में क्या हो रहा है, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब आप जैसे बच्चे इकट्ठे होकर सोच लेते हैं कि ये काम करना है, तो हमारे जो इको क्लब और NSS के वॉलंटियर्स, बात मैंने शुरू की थी, जो वॉलंटियर खुद जब करते हैं, तो हमने उनको किसी को फोर्स नहीं किया कि भाई चल हमारे साथ ये काम करना है। लेकिन बच्चे जब इकट्ठे हुए, शुरू में 5, 10, 15 बच्चे इकट्ठे हुए, तो उन्होंने वो वाले स्पॉट फिक्स कर दिए कमल हॉस्पिटल के सामने, कॉलेज की बैक साइड पे। पिछले 15-20 साल से लोग कूड़ा फेंकते थे,
और 10 बच्चे 15 बच्चे इकट्ठे हुए, वहाँ पे गए और उन्होंने पहरा दिया। वहाँ पे जो आसपास लोग हैं उनको अवेयर किया। एक चाय वाले भैया हैं, वो बड़े हमारे बच्चों के फ्रेंड बन गए हैं, तो चाय वाले भैया उनको साथ जोड़ा, सोसाइटी को साथ जोड़ा, उस वॉल को पेंट किया। और आज आप जब जाओगे वापस तो जस्ट सी कि व्हाट अ प्लेस दैट इज। और वो किन लोगों के लिए है? वही जो आसपास रह रहे हैं। तो इसीलिए जब ये बच्चे हमारे पास सामने बैठे हैं तो आपका यहाँ पे वॉलंटियर होके आना मेरे लिए एज प्रिंसिपल बहुत ही तसल्ली की बात है। और ज़्यादा तसल्ली की बात तब हो जाती है क्योंकि जब बड़ा काम करना है तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का साथ होना बहुत ज़रूरी है। तो शायद हमारे बच्चों का वो काम ही था कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने दोआबा कॉलेज को चुन लिया इस काम के लिए, सिविल डिफेंस के लिए। और हमारे पास ये लर्नेड पर्सनैलिटीज जो सिविल डिफेंस के सारे ऑफिस बेयरर्स यहाँ पे पहुँच गए, तो कहीं ना कहीं चीज़ें कनेक्टेड होती हैं। तो आप वॉलंटियर्स का आना, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का साथ होना और तकरीबन 150 बच्चों का एक अच्छे माइंडसेट के साथ बैठना, सीखने के लिए तैयार होना, ये ऐसे ही नहीं हो जाता। इसका मतलब ये कोई स्पेशल रीज़न के कारण हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और उस रीज़न को जब हम पूरा करेंगे तो सोसाइटी में डेफिनेटली एक बहुत अच्छा चेंज लेके आएंगे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। फतेह ਦੀ ਆਵਾਜ਼ नहीं आई पूरी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲਜ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਦੁਆਬਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਰਮਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਇੱਥੇ 6 ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਕੈਂਪ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ 6 ਦਿਨ ਦਾ, ਕੋਈ 3 ਦਿਨ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ बोझ पै गया सी, किसी को नोटबंदी हुई सी, कोई पैसे नहीं सी। इत्थे घट्टो घट्ट 7 ਲੱਖ ਤੇ 20,000 रुपया जिहड़ा गौरमेंट ने इत्थे तुहाडे स्टूडेंटां नूं सारिਆਂ ਨੂੰ वंडिया सी। और वो बहुत भयानक समा सी ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਲੱਗੇ ਨੇ। और इत्थों सिख के बड़े ही होनहार बच्चे ने इत्थे दे और पूरे अपने कंट्रोल च बहिंदे ने। कई बच्चे रौला पाते ने पर तुहाडे स्टूडेंट इत्थे दे कॉलेज के बहुत सियाने ने। असीं भी इत्थों ही पढ़ के गए हाँ। ये कॉलेज बहुत वधिया है और साडे मिडल च आउंदा है। और नाल ही धार्मिक स्थान है अपना देवी तला, इत्थे ही है सिंह सभा गुरुद्वारा प्रीत नगर और बाबा सोडल। ये 3 मशहूर फेमस जगह ने जिहदे नाल है। और इहदी अपनी पहचान है दुआबा कॉलेज की। इत्थे बहुत बहुत वधिया इत्थों स्टूडेंट इन्होंने पैदा किए ने और स्टूडेंट इत्थों बन के कोई ऑफिसर बड़े बड़े अहुदे ते लगे हुए ने। असीं सारे बच्चों का और साडा जो स्टाफ है दर्जा बाय दर्जा सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। इन्ना ही कहंदा होया वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੈਂਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ, PTN ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ ਜੀ। एक कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ सिविल डिफेंस 2026 सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा फंडेड साडे DGP श्री संजीव कालरा जी, डिप्टी कमिश्नर हिमांशु अग्रवाल ते साडे बटालियन कमांडर सरदार जसकरण सिंह जी, उन्हां दी हुकमां ते दिशा निर्देशां अनुसार ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪ ਆ ਦੂਜਾ ਇਹ ਦੁਆਬਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਂਪ ਦੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ, ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਿੰਗ, ਫਸਟ ਏਡ, CPR, FBAO ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੈਸਕਿਊ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੈਂਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਪੈਸਿਟੀ ਬਿਲਡ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਡ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆ ਉਹ ਤੇ ਮਿਨੀਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂ ਮਿਨੀਮਲ ਹੋਵੇ? ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੈਜੁਅਲਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪ ਆ ਇਹ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੁਆਬਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕੈਂਪ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।